Good morning, children. How are you all? Today we are meeting again for the class. In today's class, we will study about the revision part. હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ જોઈશું, પણ એ પહેલાં હું આપને એક નાની વાર્તા કહીશ. એક મમ્મી અને દીકરીની વાર્તા છે. ટૂંકી વાર્તા છે, સાંભળજો ધ્યાનથી. એક દીકરી પોતાની મમ્મીને કહે છે, મમ્મી આજે મને કઢી ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે, તો શું હું કઢી બનાવું? મમ્મીએ ખૂબ ઉત્સાહથી કીધું, હા બેટા, જરૂર બનાવો, કેમ નહીં, આજે તમારા હાથની કઢી ખાઈશું. દીકરી ખૂબ જ ઉત્સાહિત થઈ જાય છે કે ચલો આજે હું કઢી બનાવીશ અને હું અને મમ્મી બંને જણા ખાઈશું. એ રસોડામાં જાય છે, ચણાનો લોટ લે છે, છાશ લે છે, મીઠું અને જે કંઈ જરૂરી વસ્તુઓ છે એ ભેગી કરે છે અને બનાવવાનું ચાલુ કરે છે. જ્યારે એ ચણાનો લોટ નાખે છે, છાશ નાખે છે, પાણી નાખે છે, તો ત્યારે એનું જે મિશ્રણ છે એ ખૂબ ઘટ થઈ જાય છે. એ મમ્મીને બૂમ પાડે છે, મમ્મી મારું મિશ્રણ ખૂબ ઘટ થઈ ગયું છે, ચણાનો લોટ વધારે નાખી દીધું મેં, આ તો ગડબડ થઈ ગઈ. મમ્મીએ બહારથી જ પોતાનું કામ કરતાં કરતાં કીધું, કોઈ ચિંતાની વાત નથી બેટા, તમે થોડુંક પાણી વધારે નાખી દો એમાં અને મીઠું પણ નાખી દેજો. તો દીકરી વિચારે છે, હા આ આઈડિયા તો સારો છે. પાણી નાખવા જતાં આખું પાણીનું ગ્લાસ ભૂલથી મિશ્રણમાં પડી જાય છે, એટલે પાણી વધારે થઈ જાય છે. દીકરી વિચારે છે, ફરી ગડબડ થઈ ગઈ, આજનો મારો દિવસ જ સારો નથી. ફરી એ મમ્મીને બૂમ પાડે છે, મમ્મી આ તો પાણી વધારે થઈ ગયું, હવે શું કરું? તો મમ્મીએ પોતાનું કામ કરતાં કરતાં કીધું, કંઈ વાંધો નહીં, હવે થોડુંક ચણાનો લોટ નાખી દો. તો એણે વિચાર્યું કે હા આ વિચાર પણ સરસ છે, થોડુંક ચણાનો લોટ નાખી દઉં છું. લોટ લેવા જતાં કંઈક વિચારતા વિચારતા કે આ બધું આજે મારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે, એ ચણાના લોટની જગ્યાએ ઘઉંનો લોટ લઈને મિશ્રણમાં નાખી દે છે. જ્યારે સફેદ સફેદ બધું ઘઉંનો લોટ એના હાથમાં જ્યારે નજરે ચડે છે, ત્યારે એ વિચારે છે, ઓહ આ તો વધારે ગડબડ થઈ ગઈ, હવે તો આમાં હું શું કરી શકું? ફરી એ ચિંતાની અવસ્થામાં પોતાની માતાને બૂમ પાડે છે કે મમ્મી આ તો ફરી ગડબડ થઈ ગઈ, હવે હું શું કરું? મમ્મી પણ અકળાઈ ગયા. મમ્મીએ કીધું કે હવે તારે જે કરવું હોય એ કર. દીકરીએ કીધું, વાંધો નહીં મમ્મી, હવે આની કઢી તો સારી બનશે નહીં, હું એવું વિચારું છું કે આને ફેંકી દઉં. મમ્મીએ કીધું, સારું, જો એ પણ તને આવડતું હોય તો ફેંકી દે. દીકરી આખું તપેલું લઈને બહાર એ મિશ્રણ ફેંકવા જાય છે અને વિચારતા વિચારતા એ ફેંકવા જાય છે અને એને દેખાતું નથી, સામેથી એક વ્યક્તિ સરસ કપડાં પહેરીને પોતાના ઓફિસ માટે નીકળ્યા હતા અને આખું કઢીનું તપેલું એ વ્યક્તિ ઉપર ફેંકી દે છે. ત્યાં પણ ગડબડ થઈ જાય છે. તો એ દીકરી વિચારે છે, આજે સવારથી બધા જ કામમાં ગડબડ થઈ રહી છે અને છેવટે કઢી ના બની અને એ લોકો ખાઈ શક્યા નહીં. આવી જ રીતે આપણી જે નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે એમાં આરિફ અને તેના ફ્રેન્ડ્સ વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે આરિફ અને તેના ફ્રેન્ડ્સ સાથે કંઈક ને કંઈક ગડબડ થઈ રહી છે. શું ગડબડ થઈ રહી છે એ વાક્ય સ્વરૂપે આપણે જોઈશું. તમારી સાથે પણ ક્યારેક આવું થતું હશે. વિચાર્યું હોય કે સવારે વહેલા ઉઠીને 2 કલાક ભણી લઈશ અને તમે ઉઠી જ ના શકો. સવારે રસ્તામાં જતાં જતાં પથ્થરથી વાગી જાય, લોહી નીકળે, ખૂબ પીડા થાય, તો આપણને એવું લાગે કે આજનો દિવસ આપણો સારો નથી, આપણી સાથે ખૂબ ગડબડ થઈ રહી છે. પણ આવું થતાં આપણે હતાશ થવું જોઈએ નહીં. ચાલો આપણે આપણી એક્સરસાઇઝમાં જોઈએ કે આરિફ અને તેના ફ્રેન્ડ સાથે કઈ કઈ ઘટના ઘટે છે. Yesterday was an unlucky day for Arif and his friends. Write what has happened to everyone. The first one is done for you. બાળ દોસ્તો, નીચે આપેલું ઉદાહરણ આપના પાઠ્યપુસ્તકમાં આપને સમજવા માટે લખેલું છે. એને આપણે વાંચીએ અને સમજીએ. આરિફ,
શું ગડબડ થઈ છે તેને શબ્દો રૂપે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. કૌંસમાં લખ્યું છે કટ, પછી ફેસ અને ફરી કૌંસમાં લખ્યું છે શેવ. તો આ ત્રણેય શબ્દોને કમ્બાઈન કરીને આપણે વાક્ય સ્વરૂપે રજૂ કરવાનું છે. ધ્યાનથી જુઓ. આરિફ cut his face when he was shaving. All of you understood? Arif cut his face when he was shaving. આવી જ રીતે આરિફના બીજા મિત્રો સાથે શું થઈ રહ્યું છે આપણે તેને વાક્ય સ્વરૂપે લખીશું. Let us see another sentence. પહેલા મિત્રનું જે નામ આપેલું છે એ છે શૈલેષ. હર્ટ, આર્મ, પ્લે, ક્રિકેટ. આ ક્લૂને જોડીને આ શબ્દોને કમ્બાઈન કરીને આપણે વાક્ય લખવાનું છે કે શૈલેષ સાથે કઈ ગડબડ થઈ ગઈ. ચાલો જોઈએ. આપ પણ વિચારો. Let us see. Shailesh hurt his arm when he was playing cricket. Shailesh hurt his arm when he was playing cricket. Let us see the next sentence. અહીંયા કયા બે ફ્રેન્ડ્સના નામ લખેલા છે? રાજવી એન્ડ દિશા. રાજવી એન્ડ દિશા. જે વર્ડ્સ આપેલા છે ડોગ, કૌંસમાં લખ્યું છે ચેઝ અને રન. ચાલો વિચારો શું થયું હશે? આવું તો આપની સાથે પણ થાય છે. આપ કોઈ અજાણ્યા વિસ્તારમાં જતા રહો તો ત્યાં આપને કૂતરા જોવા મળે છે અને પછી શું થાય છે તમારી સાથે એ વિચારો. તો આપને આ વાક્ય ખૂબ સરસ રીતે સમજાઈ જશે. A dog chased Rajvi and Disha when they were running. A dog chased Rajvi and Disha when they were running. આરિફના 3 મિત્રો સાથે શું ગડબડ થઈ એ આપણે જોઈ લીધું. ચાલો જોઈએ બીજા મિત્ર કોણ છે? ઇમરોઝ. કૌંસમાં છે ફાઇન્ડ, ફ્લાય, ડ્રિંક, સૂપ. ચલો વિચારો આ શબ્દોથી આપને કઈ ગડબડનો ખ્યાલ આવી રહ્યો છે? ઇમરોઝ સાથે શું થયું હશે? Let us see. Imroz found a fly when he was drinking the soup. આવી ગડબડ તો આપણી સાથે પણ થાય છે. જમવા બેસીએ તો થાળીમાં કોઈ એવી વસ્તુ દેખાઈ જાય જે આપણને ગમતી ન હોય તો આપણે બીજી થાળી લેવી પડે છે. ધ્યાનથી વાંચીશું બાળ દોસ્તો. ઇમરોઝ found a fly when he was drinking the soup. Next, સંકૃત. તેમના માટે શબ્દો આપેલા છે. કૌંસમાં છે બેંગ, પછી લખ્યું છે ટ્રી ડેશ ડ્રાઈવ. વિચારો આ ત્રણેય શબ્દોને કમ્બાઈન કરીને આપણે વાક્ય બનાવીશું કે સંસ્કૃત સાથે શું થયું હશે. Samkrit banged his car against a tree when he was driving. Listen again. Samkrit banged
his car against a tree when he was driving. દ્વિજા કૌંસમાં આપેલું છે burn, finger dash cook. બહુ જ સરળ છે. આપ સૌની સાથે પણ થશે, મારી સાથે પણ થાય છે આવું. શું થયું દ્વિજા સાથે? ચાલો જોઈએ. દ્વિજા burnt her finger when she was cooking. દ્વિજા burnt her finger when she was cooking. So children, you have seen how Arif and his friends had an unlucky day. બધા જ મિત્રો સાથે નાની ઘટના ઘટી જેના કારણે તેઓ પોતાના દિવસને અનલકી ગણે છે. આ તમામ વાક્યો આપણે એકવાર ફરી જોઈશું. હું વાંચીશ અને તમારે પણ ધ્યાનથી ઘરે વાંચવાનું છે અને પોતાની નોટબુકમાં તમામ વાક્યો લખવાના છે. ચાલો જોઈએ. શૈલેષ hurt his arm when he was playing cricket. A dog chased Rajvi and Disha when they were running. Imrose found a fly when he was drinking the soup. Samkrit banged his car against a tree when he was driving. Dvija burnt her finger when she was cooking. તો બાળમિત્રો, આવી નાની નાની ઘટનાઓ આપણા રોજિંદા જીવનમાં બનતી હોય છે. પણ જેમ મેં પહેલાં પણ કીધું, આપણે ક્યારેય હતાશ થતા નથી અને આ બધી જ ઘટનાઓને ભૂલીને આપણે સારું કામ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. We will meet in the next class. Till then, stay safe, study at home. Tata. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। हमने पिछले एपिसोड में भाषा सज्जता के तहत उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी प्रकार से भाषा की जो विशेषताएं हैं और भाषा की जिस प्रकार से प्रस्तुति होती है, ऐसी ही एक विशेषता से जुड़ी हुई ऐसी ही भाषा की एक विशेषता के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो आपने जिन इकाइयों की पढ़ाई की है उनमें भी भाषा के ऐसे प्रयोग हुए हैं। आज हम एक परिच्छेद का पठन करके उस परिच्छेद के जरिए भाषा की इस विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए और आपको भी मेरे साथ इस परिच्छेद का पठन करना है और साथ ही साथ समझना है कि इस परिच्छेद की ऐसी तो क्या विशेषता है। तो शुरू करते हैं परिच्छेद का पठन। मैं एक एक करके परिच्छेद के हर एक वाक्य आपको दिखाने वाला हूं। आपको हर एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है। मैं भी यहां से हर एक वाक्य का पठन करने वाला, तो आप भी पढ़ते जाइए और सुनते भी जाइए। एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था। परिवार के सदस्यों में परेश छोटा लड़का था। वह सारे परिवार की आंखों का तारा था। उसके माता पिता खून पसीना बहाकर उसको पढ़ाने के लिए दिन रात एक करते थे। परेश भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। पाठशाला के शिक्षक भी परेश की पढ़ाई से बेहद खुश थे। वे भी चाहते थे कि यह लड़का हमारी
पाठशाला का नाम रोशन करे। परेश के माता पिता और शिक्षकों के सपने साकार हुए। परेश की मेहनत रंग लाई और पढ़ाई पूर्ण होते ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई। यह जानकर उसके माँ बाप की आंखें भर आई। परेश का भाग्य चमका और परिवार के अच्छे दिन आए। इस प्रकार परेश जी तोड़ मेहनत करके अपने सपने साकार करते हुए परिवार के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने एक परिच्छेद का पठन किया और परिच्छेद में परेश के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपने पढ़ी भी। लेकिन क्या आपको कुछ विशेष बात लगी यहाँ पर? और लगी तो वह कौन सी थी, यह आपको समझना है और इस परिच्छेद से हमें इसी बात को समझनी भी है। तो आइए इस बात की जानकारी भी मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ, तो जरा गौर से देख लीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 13 वाक्य थे और उन 13 वाक्यों में कई सारे मुहावरों का प्रयोग आपने देखा। और मुहावरे कौन कौन से थे? जैसे कि परेश परिवार की आंखों का तारा था, और मुहावरे का अर्थ तो आपको पता ही होगा, आंखों का तारा यानी कि सबसे प्यारा। शुरुआत में ही आपने एक वाक्य पढ़ा कि भाई परिवार का सबसे छोटा सदस्य था कौन? परेश, और परिवार की आंखों का तारा भी था। ऐसे ही खून पसीना बहाना यानी कि कड़ी मेहनत करना, दिन रात एक करना, यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ आपको खोजना है। मन लगाकर पढ़ाई करना, आप भी मन लगाकर ही पढ़ाई करते होंगे, है ना? पूरे ध्यान से पढ़ाई करना या पढ़ाई में ध्यान लगाना। सपने साकार होना, तो ये मुहावरा तो आपने जरूर पढ़ा है, और कौन सी इकाई में पढ़ा है ये आपको सोचना है। भाग्य चमकना, परेश ने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक किए उसके माँ बाप ने, और जब मन लगाकर उसने पढ़ाई की तो उसका भाग्य चमक उठा। चमक उठा यानी कि जो इच्छाएं है वह पूर्ण हुई या उसका नसीब उजागर हुआ। आंखें भर आना, देखो यहाँ पर हमने एक वाक्य पढ़ा कि जब परेश को नौकरी मिल गई तब यह खुशी के समाचार सुनकर उसके माँ बाप की आंखें भर आई, यानी कि आंखों में पानी आया। लेकिन ये आंसू कैसे थे? तो हर्ष के थे, आनंद के थे, खुशी के थे। यानी कि आंखें भर आना यानी कि हर्ष से आंखों से पानी निकलना या हर्ष से आंखों से आंसू निकलना। उसी प्रकार से मेहनत रंग लाना यानी कि परिश्रम का फल मिलना। अच्छे दिन आना यानी कि सुख के दिन आना। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि कड़ी मेहनत करना, और सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत आवश्यक है। नाम रोशन करना यानी कि प्रसिद्धि मिलना। तो यहाँ पर इतने सारे मुहावरे हमने इस परिच्छेद के जरिए पढ़े, और हर एक मुहावरा अपने आप में सार्थक है, जो एक विशेष अर्थ हमें देता है, और एक छोटा ही ये जो शब्दांश है उसके जरिए हम बड़ी बात यहाँ पर कह सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आइए, तो विद्यार्थी मित्रों, इन मुहावरों को पढ़कर आपको ये लगा होगा कि हमने भी कक्षा 8 की 1 से 6 तक की जो भी इकाइयाँ पढ़ी है उनमें भी ऐसे कई सारे मुहावरों का अभ्यास आपने किया भी है, और आपने कई सारे मुहावरों से जुड़े हुए वाक्यों का प्रयोग भी किया होगा। और अगर नहीं किया है तो आपको इन मुहावरों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये काम आप गृह कार्य में करने वाले हैं। लेकिन आपने इकाई 1 से लेकर 6 तक की इकाई में जो मुहावरे पढ़े हैं उनमें से मैं यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, और उनका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग होता है ये भी यहाँ उदाहरण के सहित आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जरा, दिल कचोटना, ये मुहावरा आपने पढ़ा है। आपको ये खोजना है कि ये कौन सी इकाई का मुहावरा है और इकाई के कौन से परिच्छेद में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं यहाँ अर्थ बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसे भी कई सारे मुहावरे हमारी इकाइयों में हैं,
तो आप उनको समझ सके और उनका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग भी कर सके। और इसका अर्थ है कुछ न पाने पर दुख होना। तो इससे जुड़ा हुआ वाक्य जरा सोचिए। इकाई का वाक्य भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और इसके अलावा भी इस मुहावरे से जुड़ा हुआ वाक्य आप बना भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो वाक्य लिखा है इस प्रकार से है, पैसे ना होने के कारण अमीना का दिल कचोट रहा था। देखिए, अब परिस्थिति आप समझ चुके हैं कि भाई इस मुहावरे का कौन सी इकाई में प्रयोग किया गया है। तो ये मुहावरा जिस परिच्छेद में प्रयोग में लिया गया है उस परिच्छेद का आपको पठन करना चाहिए और ये पूरी बात भी समझनी चाहिए। अगला मुहावरा देखते हैं, बेड़ा पार लगाना। इसका अर्थ क्या होगा आपको पता है क्या? हाँ, यहां पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, संकट से बचाना। हम भी जब संकट में पड़ जाते हैं तो किसको प्रार्थना करते हैं? तो इसी प्रकार जब कौन संकट में था तब उसकी जो नानी थी वह प्रार्थना करते किस प्रकार की कि अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, क्योंकि मेले में जाना था और वहाँ तो कई सारे लोग होते हैं और दादी माँ को चिंता थी कि हामिद तो भी छोटा बच्चा है, कहीं गुम ना हो जाए, और इसलिए वह यह सोचती है कि भाई अब तो बेड़ा कौन पार लगाएगा? तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएंगे। आइए अगला मुहावरा भी देख लेते हैं, खतरों से खेलना, भयावह चीजों से पाला पड़ना। तो यहां पर भी इस इकाई से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, आपको पढ़ना है। सुनीता अंतरिक्ष के खतरों से खेलने के लिए तैयार थी। अगला जो मुहावरा है, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, यानी जो भी पुरानी रूढ़ मान्यता है, परंपरा है, उनको तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। हमने इस इकाई में देखा भी था और आज तो हर जगह ये बात हमें देखने को मिल रही है। और वाक्य इस प्रकार से है कि आज की नारी परंपराओं की बेड़ी तोड़कर आगे बढ़ रही है। अगला जो मुहावरा है, सर ऊंचा होना, यानी कि गर्व होना। सुनीता के इस कार्य ने भारतीयों का सर ऊंचा कर दिया। अगला मुहावरा देखते हैं, जी तोड़ मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अगला मुहावरा इस प्रकार से, महारत हासिल करना, यानी ये कौशल प्राप्त करना। समस्याओं को पराजित करने के लिए महारत हासिल करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जिन इकाइयों का पठन किया है उनसे जुड़े हुए या उन इकाइयों में प्रयोग में लिए गए कुछ मुहावरे आपको अर्थ और उदाहरण सहित यहाँ पर दिखाए हैं। लेकिन इन मुहावरों के अलावा भी कई सारे मुहावरे इन इकाइयों में प्रयोग में लिए गए हैं। तो अब आपको ये सारे मुहावरे अपने कॉपी में लिखने हैं, साथ ही साथ उनके अर्थ भी लिखने हैं और हर एक मुहावरे से जुड़े हुए एक से ज़्यादा वाक्य आपको बनाने हैं, यानी कि इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। लेकिन आप वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं कि एक वाक्य इकाई से जुड़ा हुआ हो और दूसरा वाक्य आप अपनी खुद की समझ के आधार पर भी बना सकते हैं। वैसे तो मुहावरे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो भी बात हम कहना चाहते वह एक मुहावरे के जरिए हम सीधे तरीके से कह सकते हैं। उसके लिए हमें लंबी चौड़ी बात नहीं करनी पड़ती। आइए मुहावरे की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो देखिए जरा, जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। जो शब्द समूह है उनके विशिष्ट अर्थ और उसका जो लाक्षणिक अर्थ है उसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे और पूरी बात उसके विशिष्ट अर्थ से सामने वाला अच्छी तरह से समझ भी जाता है। यानी कि जो बात समझाने के लिए हमें कई सारे वाक्यों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं बातों को हम मुहावरों के जरिए कुछ थोड़े से शब्दों में कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप मुहावरों से जुड़ी हुई इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और मैं मानता हूं कि अब आप अपनी बातों में, अपनी लिखाई में भी अच्छी तरह से मुहावरों का प्रयोग कर सकेंगे। और मुहावरों का प्रयोग हमें कहाँ पर किस प्रकार से करना चाहिए। वैसे तो कई सारे मुहावरे ऐसे भी हैं कि जिनका भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न अर्थघटन भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो आपने आंखों से जुड़े हुए, हाथ से जुड़े हुए, कान से जुड़े हुए कई सारे मुहावरों का अभ्यास भी किया होगा
और अगर नहीं किया है तो यही भी करना चाहिए। हर एक बार उनका अर्थ बदलता जाता है। तो मुहावरों के इस अभ्यास से हम हमारी भाषा को और भी समृद्ध बना सकते हैं और थोड़े ही शब्दों में हम सामने वाले को जो भी कहना चाहते हैं वह विशिष्ट रूप से कह सकते हैं। तो आपको मज़ा आया होगा और अब आप खुद भी मुहावरों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे ताकि आप अपनी भाषा को और भी समृद्ध कर सकें। धन्यवाद।